Okay, good evening, everyone. Good evening, friends. My dear students, yes. So it's actually 5 o'clock. We're going to start the class now. Okay, so I'm observing from 2 days, not many students are joining. I don't know what is the reason, but in the last class also, there were only 2 people, that is class 12 and Himanshi. Also in this class, there are only 2 people present. I don't know what's wrong with this. Before I was leaving, there were many people attending the class, but nowadays it's not happening. Shipra, please let me know why this is happening. Okay. Okay. So we'll start the class then. Yes. So what we were doing in the last class, we had completed 2 experiments, that is Oswald, McCarthy and McLeod experiment that we have saw. What we understood in that experiment is that, what we have saw in that experiment is that we have extracted the biochemicals of the heat killed S strain. With the help of those biochemicals, we made sure, or you can say that scientists made sure that the genetic material was DNA. But still many people were not convinced. They thought might be protein is the genetic material, and some thought might be DNA is the genetic material. So there was a chaotic atmosphere and many people were confused. तो इसके बाद क्या हुआ बेटा, दूसरे 2 लोग आए, हर्षी एंड चेस. ओके, तो इन दोनों ने क्या किया बेटा, इन्होंने किया ट्रांसडक्शन मेथड से एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, जिसमें उन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज. वो फेज, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना काम कर देता है. ठीक है, अपना मशीनरी बनाता है, फिर अटैक करके निकल जाता है वहां से. तो एक चीज हो गई. तो ये सब चीजें करने के बाद हर्षी एंड चेस से हमको पता चला कि हाँ, कि DNA is the genetic material. So there we have used radioactive sulfur and radioactive phosphorus. तो उनके हेल्प से हमने किया, ये सब अच्छे से हम लोगों ने कल समझ गए, है ना. तो उसके अलावा हमने देखा कि RNA का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब देखा. So today we are going to start with the replication. So what is replication? What we are going to do in a replication? One experiment, that is Messerson and Stahl experiment, वो करेंगे. फिर replication का पूरा प्रोसेस करेंगे. ठीक है. DNA in mitochondria and chloroplast is circular and done the work of gene regulation. Very good, Himanshi. I'm so much, I'm feeling so much heartwarmed. Thank you so much for looking into the answer and reverting back with me. Yes, actually, as I have told you, DNA is not only present in the cell's nucleus. Okay, the nucleus का जो अंदर होता है ना बेटा जेनेटिक मटेरियल, वो होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वो ट्रांसलेशन में हेल्प करके कुछ भी उस ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्सप्रेशंस करने के लिए, फिनोटाइपिक हो या कुछ भी हो, तो वहां पे हेल्प करता है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है वो सारा इन्हीं की वजह से होता है. बट कई कबार क्या होता है, प्लांट्स में जब क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो उसमें जरूरी होता है कि वो अपना क्लोरोप्लास्ट रखता है. ठीक है, वो अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट रखता है. और वो कैसे आया, उसकी भी एक हिस्ट्री है. उसकी भी एक हिस्ट्री आपने पढ़ा है या नहीं पता नहीं हिमांशु, उसकी भी एक हिस्ट्री है. और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे आया, ओके, जो सर्कुलर DNA जो ये बता रही हैं, उसकी भी एक हिस्ट्री है. ठीक है, मैं ये कब बताऊंगी ना आपको, बायो टेक्नोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तब आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी. अभी तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं. तो विल स्टार्ट द क्लास नाउ. ठीक है, अरे 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पावर कट बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या है, जो भी है. ओके, so which one of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? ठीक है, ये 2008 का क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत पुराना क्वेश्चन है, but very easy question. Okay, please answer this in the chat box. Let me see how many of you are going to do this. Yes. You just need to remember 2 things. Which nucleotides come under purine and which nucleotides come under pyrimidine. Write in the chat box. Your answer should be written in the chat box. Okay. इस किसी ने कुछ लिखा नहीं, भूल गए, होमवर्क नहीं किया, पढ़ाने के बाद आपने होमवर्क नहीं किया. ये फर्स्ट क्लास का है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास.
जो मैंने फर्स्ट क्लास करवाया था ना, उसका क्वेश्चन है। तो बेटा प्यूरिन में आते हैं, मैंने आपको याद लिखा, आपको याद रखने के लिए बोला था पैग, ओके, या फिर गैप, याद रखो, ठीक है। तो गुआनाइन एंड एडेनाइन आते हैं बेटा प्यूरिन के अंदर, ठीक है। गुआनाइन एंड एडेनाइन कम अंडर प्यूरिन। पिरिमिडिन के अंदर आते हैं बेटा साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन एंड आरएनए के केसेस में यूरासिल। तो आपको अभी मैच करके देखना है प्यूरिन में कौन आ रहा है, गुआनिन एडेनाइन, ये तो करेक्ट है, बट हमको ढूंढना है रॉन्गली मैच्ड, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। एडेनाइन थाइमिन प्यूरिन में आता है नहीं, थाइमिन तो पिरामिडिन में आता है, ये रॉन्गली मैच्ड है। लेट्स सी अदर्स आल्सो, दूसरों को भी देखते हैं। थाइमिन एंड यूरासिल पिरामिडिन में आते हैं, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ओके, दिस इज करेक्ट वन। तो हमको रॉन्गली मैच ढूंढना है, तो ये करेक्ट है, तो हमारे आंसर के लिए रॉन्ग ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, हमारे आंसर के लिए रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख लो यूरासिल एंड साइटोसिन, ये भी करेक्ट है, बट हमारे क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। हिमांशी, यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ये क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज रॉन्गली मैच्ड। हमको रॉन्ग पेयर ढूंढना है बेटा। करेक्ट पेयर क्या है, प्यूरिन में गुआनिन और एडेनाइन आते हैं, पिरामिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल आते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों करेक्ट हैं, ए, सी एंड डी तीनों करेक्ट हैं, बी एक रॉन्ग था, तो रॉन्ग ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरएनए। ये तो बेटा मैंने बस ऐसे ले लिया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। Identify the incorrect statement about RNA. RNA was the first genetic material to evolve in the living system. हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। RNA फर्स्ट होता है ओरिजिनेट हमारे वर्ल्ड में, ओके। एवोल्यूशन आप अगर देखोगे, वेरी गुड हिमांशी, ओके। सो आप अगर देखोगे तो फर्स्ट ओरिजिनेट होता है RNA। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल, इट आल्सो एक्ट्स एज कैटलिस्ट। वेरी गुड क्लास 12, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और कुछ में, जैसे हम है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, बट जो कैटलिस्ट होके एक्ट करता है, तो दोनों ही एक्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, डेफिनेटली मैंने बोला ना, आरएनए पहला एवोल्यूट हुआ था। तो आरएनए बिकॉज इट वाज वेरी मच रिएक्टिव एंड अनस्टेबल एंड बहुत ज्यादा म्यूटेट करके इवॉल्व हो रहा था, तो इसकी वजह से आरएनए से मॉडिफाई होके इवॉल्व होके बना डीएनए। तो केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, आपको पता है, ठीक है। जो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, राइबोस है, एक में डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है। तो केमिकल मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली है। आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट इज नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल, डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। इसका ऑपोजिट लिखना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो अब हम कुछ जान लेते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, ठीक है बेटा। जो सेंट्रल डोगमा है, इसको हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ओके। तो यही वो क्या कहते हैं, भाई साहब हैं जिन्होंने डबल हीलिक्स का जो स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, तो उसमें कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। It states that the genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. तो ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना हमारे डीएनए में, मैंने बताया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होता है, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं होता, कोडेड इंफॉर्मेशन होता है बेटा। तो वो कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। तो यही चीज को बताया था फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। और क्या बताया, in some viruses flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. usually देखो बेटा DNA से RNA, RNA से प्रोटीन होना था, तो यहाँ पे क्या होता है, तो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ना डायग्राम, आप देख लो। तो DNA से RNA होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA से प्रोटीन होता है, वो ट्रांसलेट कहलाता है। बट RNA से DNA होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। I will tell you about this reverse transcription while I am explaining about transcription. आज हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, कल तो नहीं, कल विनय लेंगे क्लासेस, कल का और परसों का विनय लेते हैं। तो बेटा शायद मैं आपको ये समझाऊंगी ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो बाकी का जो है वो हम कवर अप करेंगे मंडे को, ठीक है। सो इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो HIV में आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक वायरस है, तो देयर यू विल बी एबल टू सी दैट। तो अभी हम आते हैं रेप्लिकेशन में। व्हाट एग्जैक्टली इज डीएनए रेप्लिकेशन?
देखो बेटा, रेप्लिकेशन जो है वो ऐसा है ना, आप कॉपी कर रहे हो एक पेरेंट को देख के, सिमिलरली उसका ऑफस्प्रिंग बने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा है, रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए। ठीक है, तो हम लोगों को नया डीएनए बनाना है विच इज कॉपीड फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। ठीक है, तो पेरेंटल डीएनए कैसा है, उसका 50% सिमिलर होता है ऑफस्प्रिंग में। क्यों? क्योंकि वहां पे वेरिएशन होगा ना, 50% का वेरिएशन होता है, तो इसलिए। नाउ वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है क्या ऑफ रेप्लिकेशन। इट सजेस्ट दैट द पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। देखो बेटा, जब भी हम ये वर्ड टेम्पलेट यूज करते हैं ना बेटा, टेम्पलेट का मतलब होता है रेफरेंस। एक मैं नॉर्मल मीनिंग बता रही हूँ, टेम्पलेट का मीनिंग होता है बेटा रेफरेंस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मैंने क्या किया, हिमांशी को एक पीपीटी का टेम्पलेट भेजा, तो हिमांशी ने क्या किया, उस पीपीटी का टेम्पलेट यूज करके अपना खुद का एक पीपीटी बनाया। तो मेरा पीपीटी एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड शी मेड हर न्यू पीपीटी। तो टेम्पलेट होता है रेफरेंस के लिए, तो उसके बेसिस पे कुछ नया बनता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बेटा टेम्पलेट। तो अब क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जो पेरेंटल डीएनए होता है वो होता है टेम्पलेट, तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी, ओके, उससे कॉम्प्लीमेंटरी होके नया स्ट्रैंड बनता है। और जिन लोगों को नहीं पता कॉम्प्लीमेंटरी क्या है, मैंने वो लास्ट क्लासेस में बोला था, आज फिर बताऊंगी। ठीक है, आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसको मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया। ठीक है, तो प्रूव किया गया था किसके एक्सपेरिमेंट से, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देख लो बेटा, you can see here in late 1950s 3 different mechanisms were proposed for the replication of DNA। तो जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई, क्रिक एंड क्या कहते हैं उसको, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जब देखा, तो उन्होंने दिमाग में लगाया, खिचड़ी बनाया और बताया कि हाँ ये मॉडल हो सकता है रेप्लिकेशन के लिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटीज उन्होंने निकाले, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव और दूसरा होता है डिस्पर्सिव मॉडल। तो कंजर्वेटिव में क्या है बेटा, कंजर्वेटिव मतलब देखो अपने में ही रखना, ओके, सब कुछ अपने में ही बना के रखना, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। अब कॉमन वर्ड्स में भी यूज करते हैं, हाँ भाई दैट पर्सन इज वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है, या फिर वेरी रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन, तो उसका होता है। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है बेटा, जो भी पेरेंटल डीएनए है वो सारा का सारा एक में ही चला जाता है। ठीक है, तो जो नया बनता है ना डीएनए स्ट्रैंड, ओके, तो वो क्या होता है, जितना भी नया बनता है वो एक इंडिविजुअल बना लेता है। ओके, दिस इज पॉसिबल ही नहीं है, इसको सच बताऊं तो ये नेचर में पॉसिबल ही नहीं है, बट उन्होंने लगाया भाई, मॉडल बनाया, तो ऐसे ऐसे हो सकता है करके, बट ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, जो पेरेंटल डीएनए है, तो एक पेरेंट डीएनए यहाँ पे होगा जो ब्लू में है, और यहाँ पे पेरेंटल डीएनए होगा, तो उसके टेम्पलेट की तरह यूज करके रेफरेंस में एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, तो वो जो नया बन रहा है उसको ही हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिका बना है पेरेंट से नया स्ट्रैंड का। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं रेप्लिका। ओके, तो यहाँ पे देखो डिस्पर्सिव में क्या हो रहा है, कुछ स्ट्रैंड पेरेंट, कुछ स्ट्रैंड डॉटर, कुछ स्ट्रैंड पेरेंट डॉटर, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेमी कंजर्वेटिव ही एक पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो इसको इन लोगों ने प्रूव कैसे किया, इसको वर्क किया मिसेस एंड स्टॉल ने। अब हम लोग वो देखने जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चला ना बेटा, सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होता है, और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जब हम कंसिडर करते हैं डीएनए को, तो वहां पे आप देखोगे एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में एक जगह पे होगा A T C G T A। तो जहां पे A है वहां पे T होगा, जहां पे T है वहां पे A होगा, C की जगह G होगा, G की जगह C होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, जो बेस पेयरिंग हुई है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, A की ऑपोजिट T होता है, C के ऑपोजिट G ही होता है, इसको ऐसे ही होना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नाउ अभी हम लोग समझने वाले हैं बेटा मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन हियर वी हैव टेकन अ पेट्री प्लेट, ठीक है, या फिर एक ग्लास प्लेट बोलो, पेट्री प्लेट बोलो। तो उस पेट्री प्लेट में बेटा हम लोगों ने लिया है कल्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया है मीडियम।
तो इस मीडियम में हमने डाला है, क्या डाला है, हमने डाला है इसमें हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो बेटा आइसोटोप का मतलब क्या है, ये आइसोटोप है ना, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज आइसोटोप? आप लोग केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज आइसोटोप? ये तो बेसिक है बेटा, आपने 11th में ही पढ़ा होगा आइसोटोप। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ओके, जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ, हिमांशी बता रही हैं कि मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, आई गॉट इट। ठीक है, तो वो आपको पता है, बट यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, जो नाइट्रोजन है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो एक आइसोटोप है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे कर जाते हैं कि मैम हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल्ड नाइट्रोजन लिया है क्या? नहीं, हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड नाइट्रोजन नहीं लिया, हमने सिर्फ सेम टाइप का नाइट्रोजन लिया है जिसमें क्या कहते हैं, जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, बस। ठीक है, तो वो ले लिया है हमने, तो N15। तो यहाँ पे हमने ले लिया पेट्री प्लेट नंबर 1, तो इसके अंदर जो मीडियम है उसमें हमने डाला है नाइट्रोजन 15 विच इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम फिर नॉर्मल नाइट्रोजन क्या होता है? नॉर्मल होता है N14। ठीक है, N14 होता है, तो हैवी में क्या होता है? N15। ठीक है, तो इतना याद रखो। नाउ यहाँ पे एक पेट्री प्लेट है, इसमें हमने मीडिया डाल दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ई कोलाई को छोड़ दिया ग्रो करने के लिए। ई कोलाई को मैंने इसमें डाला, छोड़ा, तो यूजुअली 20 मिनट्स तक ई कोलाई अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है। एग्जैक्टली 18 मिनट्स होता है, तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज के लिए आपको बताया है 20 मिनट्स। ठीक है, तो ई कोलाई को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया प्लेट में। तो अब क्या होगा, ई कोलाई ग्रो करेगा उस मीडियम में। ठीक है, क्योंकि उस मीडियम में नाइट्रोजन है, दूसरा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स के साथ नाइट्रोजन में जो हैवी आइसोटोप है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको 20 मिनट्स तक ऐसे ही ई कोलाई को छोड़ देना है, ताकि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बना सके। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपने ई कोलाई डाला है, जिसको आपने 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ा है ताकि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बना ले। एज सुन एज वो 20 मिनट्स होते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग दोज ई कोलाई एंड सेपरेटिंग दिस इन एन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें से ई कोलाई काढ़ो और इसमें डाल के रख लो। ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब जो ई कोलाई इस मीडियम में ग्रो हुआ था 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए जो ग्रो करा था, उसको आप निकाल के ट्रांसफर करोगे एक अनदर पेट्री प्लेट में, जिसमें है न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडियम तो है, लेकिन उसका जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल नाइट्रोजन है। ठीक है, वो N14 है जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है। अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, फिर आप ई कोलाई को यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद 20 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, तो आफ्टर 20 मिनट्स आप क्या करोगे, उससे थोड़े ई कोलाई के सेल्स काट के यहाँ पे इस सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ले लोगे। ठीक है, दिस इज सेकेंड टेस्ट ट्यूब। ओके, फिर आप 20 मिनट्स छोड़ो, फिर उसको ले लो थर्ड टेस्ट ट्यूब में, सैंपल को, ई कोलाई के सैंपल को ले लो थर्ड टेस्ट ट्यूब में। फिर 20 मिनट्स छोड़ो, फिर ले लो ई कोलाई के डीएनए सैंपल को इनसाइड द टेस्ट ट्यूब नंबर 4। तो अब आपके पास कितने टेस्ट ट्यूब्स हो गए? टोटल 4 टेस्ट ट्यूब्स हो गए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 जिसमें N15 का ई कोलाई था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 जो कि N15 से निकाल के N14 में जब ट्रांसफर करके 20 मिनट छोड़ा गया था वो, एंड देन अगेन आफ्टर 20 मिनट्स का इंटरवल वी हैव कलेक्टेड। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है बेटा, क्या आपको प्रोसीजर समझ में आ गया? प्रोसीजर में कुछ डाउट है? अब एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। प्रोसीजर में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं होना चाहिए प्रोसीजर में भी डाउट। ओके, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो हमारे जो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं ना, उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे टेस्ट ट्यूब्स में। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया है 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी सीन इन अवर टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो ये आपको कहला रहा है लाइट। ओके, लाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 14 है, नॉर्मल नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को आप अगर इस टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बैंड बनेगा, वो लाइट होता है। तो यहाँ पे हेवी बैंड बन रहा है, तो यहाँ पे होगा N15।
ठीक है, यहाँ पे प्योरली बेटा आपने इकोलाई टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेके आपने सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज किया आपने, सेंट्रीफ्यूज जो किया वो किया बेस्ड ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, ठीक है। सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के हिसाब से आपने किया सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक बैंड बना है टेस्ट ट्यूब में, वही बैंड इस टेस्ट ट्यूब में शो किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में शो किया है वही ऊपर ऊपर बना है, ठीक है, कुछ ऊपर में बना है, दैट इज लाइट बैंड, ठीक है। क्यों लाइट बैंड बना है? क्योंकि N14 का डीएनए है वो लाइटर है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हेवी बैंड बना है, वो थोड़ा नीचे बना है, ठीक है, वो थोड़ा नीचे बना है। तो इसमें कौन सा डीएनए है? इसमें है, डीएनए का मतलब देखो बेटा पूरा डीएनए चेंज नहीं होता, डीएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस होता है ना, ओके। तो नाइट्रोजन बेसिस में जहां पे भी आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, वहां पे सारे नाइट्रोजन की जगह में चेंजेस आते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड्स में wherever there is a presence of nitrogen, तो उस प्लेस में ये होगा, ठीक है। तो और एक पॉसिबिलिटी क्या है? और एक पॉसिबिलिटी है हाइब्रिड होना, ठीक है। तो हाइब्रिड होगा तो इसका यहाँ पे हो सकता है N15 और N14 दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ये केस होता है, ओके। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट यू आर गोइंग टू सी इन द टेस्ट ट्यूब्स व्हिच वी हैव कलेक्टेड, 4 कलेक्ट किया है। अभी मैं आपको कुछ सीजियम क्लोराइड के बारे में बताती हूँ बेटा। तो आपको मैंने कल बताया था सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो रन करती है हायर स्पीड में विद द हेल्प ऑफ करंट। तो जब हम करंट पास करेंगे सेंट्रीफ्यूज में, आप ट्यूब्स डालोगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू रन करेगा। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो साइड में पास हो जाएंगे, वो पेलेट बनेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बेस में जाके सेटल हो जाएंगे। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सुपरनेटेंट बनेंगे, वो फ्लोट करेंगे या फिर हेवियर के ऊपर रहेंगे। ये होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी। वहां पे हम ग्रेडियंट करें, देखो बेटा वर्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्रिएट करना। ग्रेडियंट का सिंपल वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंस क्रिएट करना। तो वहां पे मैंने जो बताया ना, वो डेंसिटी के थ्रू हमने ग्रेडियंट बनाया था, डेंसिटी से हमने डिफरेंस क्रिएट किया था। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ना सीजियम क्लोराइड के थ्रू, इसको हम बोल देंगे बेटा शैडो। एक मिनट, यहाँ पे कहीं तो मैंने निकाल के रखा था, where is this? इसको बुलाते हैं बेटा शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट, ओके, शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट। अब आप मुझे पूछोगे मैम इसको क्यों शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट कहते हैं? इसका रीजन है बेटा, देखो सीजियम क्लोराइड में कौन है? बंदा है सीजियम, ठीक है। वी हैव सीजियम एटम हियर, एवरी जगह इट लुक्स पर्पल पर्पल, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो इसमें क्या है बेटा, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में है सीजियम एटम, ठीक है। तो ये जो सीजियम है ना, ये जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। अब इसको आपने सेंट्रीफ्यूज में डाला, इसमें हमने डाला है सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो इसमें जो सीजियम है ये क्या कर रहा है, ये कई बार केसेस में यहाँ पे बैंड बना देता है, कई बार यहाँ पे बैंड बना देता है, कई बार बीच में बैंड बना देता है। तो ये जो होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो बिकॉज ऑफ सीजियम, सीजियम क्या करता है, कई बार वहां पे चला जाता है बेस में, कई बार यहाँ पे, कई बार बीच में। तो ऐसा होता है सीजियम का काम, ठीक है। तो अब आप मुझे पूछोगे, हाँ मैम समझ लिए, सीजियम जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है, तो इसको हम बुलाते हैं शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट। बट इसका डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट में क्या यूज है बेटा? यूज ये है, इसका जो सीजियम क्लोराइड का जो डेंसिटी है, कि सीजियम क्लोराइड का जो डेंसिटी है वो एकदम से सिमिलर होता है हमारा डीएनए के डेंसिटी को, ठीक है। जो डीएनए का जो डेंसिटी है, ठीक है, उसको ये सिमिलर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ हमने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था ई कोलाई का, वो भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, ठीक है। तो हमको उसका उसमें मिला के डालने के बाद हमको दिखेगा बैंड्स, ठीक है। तो वो बैंड्स के हिसाब से हम कर सकते हैं कंफर्म कि कौन सा डीएनए कहाँ पे है, किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड को यूज किया बिकॉज इट हैज द शैडो
डेंसिटी ग्रेडियंट, ये शैडो डेंसिटी ग्रेडियंट दिखाता है, और इसका जो डेंसिटी है सीजियम क्लोराइड का या फिर सीजियम का, वो हमारे डीएनए से सिमिलर होता है, ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्यों हम लोग सीजियम क्लोराइड ही यूज करते हैं, तो इसका मैंने आंसर दे दिया बस, ठीक है। अगर ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा या समझना भी नहीं चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्सपेरिमेंट, बस एक्सपेरिमेंट समझ लो, उतना काफी होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेटा, ये 3 पॉसिबिलिटीज आपने देख ली टेस्ट ट्यूब में, तो अब देख लो ये होता है आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ये है आपका सेकेंड टेस्ट ट्यूब, ये है आपका थर्ड टेस्ट ट्यूब, और ये है आपका फोर्थ टेस्ट ट्यूब। हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए थे, है ना। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हमने कहां से निकाला था बेटा, हमने निकाला था N15 मीडियम के इकोलाई से हमने निकाला था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपने सीजियम क्लोराइड का यूज करके आपने ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया, तो बैंड आपको कहाँ पे दिख रहा है, बैंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बैंड लग रहा है। तो ये बैंड क्या है, इट शोज all the DNA strands have N15 kind of what DNA, ठीक है, तो सारों के पास N15 है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब का हमने कैसे लिया था, तो N15 के अंदर जो इकोलाई है उनको ट्रांसफर किया था आफ्टर 20 मिनट्स टू N14 टेस्ट ट्यूब, ये ट्रिपलेट, तो उसमें भी 20 मिनट्स छोड़ने के बाद हमने एक्सट्रैक्ट किया था सेकेंड टेस्ट ट्यूब का सैंपल को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये जो है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप सारे देख रहे हो कि ये हाइब्रिड हैं, ठीक है, ये हाइब्रिड बना रहे हैं जो कि हेवी डेंसिटी से डिफरेंट है, ठीक है, हेवी डेंसिटी से डिफरेंट है, ये कहीं और अपना क्या कर रहे हैं, वो शेड बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो आपने क्या किया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्ट किया उसके फिर 20 मिनट्स के बाद अपने थर्ड टेस्ट ट्यूब में ले लिया था इकोलाई का सैंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स, ठीक है, हियर यू विल सी 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स व्हिच आर दोस, यू विल सी 50%, ओके, तो यहाँ पे देखो ये 50% है, यहाँ पे 50। तो here what you will see in the third test tube, 50% of newly stranded DNA and 50% of hybrid DNA, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ 50% न्यूली फॉर्म्ड, ओके, सो न्यूली स्ट्रैंडेड, 50% और हाइब्रिड, ठीक है। तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऑल आर हाइब्रिड, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेंगे ऑल आर हाइब्रिड, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑल विथ N15, ठीक है। तो फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा बेटा 75% न्यूली स्ट्रैंडेड DNA एंड 25% हाइब्रिड। तो ये रेशियो देखने के बाद मेसलसन एंड स्टॉल एक कंक्लूजन पे आए। तो कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन ये है, जो भी पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, वो टेम्पलेट बनता है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, एंड उसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो कहलाता है रेप्लिकेटेड वन, ठीक है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक पैरेंटल और एक न्यू स्ट्रैंड, तो दोनों मिलके हमको एक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको यही चीज पता चली। अब हम लोग ये डिटेल्स पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी सेंटेंसेस, ये आपके एनसीईआरटी के सेंटेंसेस है। अब आपको समझ में आ गया, अब ये पढ़ो, अब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मेसलसन एंड स्टॉल प्रिपेयर्ड 2 कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई, ठीक है, 2 ई कोलाई के कल्चर मीडियम बनाया। फर्स्ट वन में क्या किया बेटा, उन्होंने लिया वन प्रिपरेशन कंटेन्स अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट विच हैज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो N15 was incorporated in both the strands of bacterial DNA. E. coli बैक्टीरिया है बेटा, इट्स एन एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए, एंड द डीएनए बिकम्स हेवियर, ठीक है, डीएनए एकदम हेवी बन जाता है। तो ये हो गया N15। तो ये हमने देखा टेस्ट ट्यूब 1 में, टेस्ट ट्यूब 1 में यही केस इसका है, बैक्टीरिया आप निकाल के देखते हो सारे हेवी आते हैं, ये नीचे ऐसे करके शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब एक कल्चर मीडिया था, अदर कल्चर मीडिया प्रिपेयर्स, ओके, कंटेन्स N14 सॉल्ट्स। N14 जो है वो नॉर्मल है समझो, ठीक है, तो N14 है। सो N14 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड बिकम्स लाइटर। मैंने बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में 3 पॉसिबिलिटीज, इसकी बात हो रही है बेटा, इसकी बात हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो, सो N14 was incorporated in both the strands and the DNA became lighter. इतना इनको समझ में आ गया. कैसे समझ में आया? These two types of DNA can be separated by centrifugation in cesium chloride density gradient. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो होता है शैलो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीजियम एटम्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा. सो व्हाट दे टुक, दे फर्स्ट टुक इक्वलाइज सेल्स फ्रॉम N15. पहले N15 में ही थे, N15 को हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 1 लिया था. तो 20 मिनट्स के बाद उन्होंने N15 का सेल्स को ट्रांसफर किया N14 में. आफ्टर 1 जनरेशन, मतलब नियरली 20 मिनट्स के बाद, दे आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड द डीएनए. इट्स डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट, दैट मींस इट शोड हाइब्रिड. ओके, दैट इज बिटवीन N15 एंड N14. ठीक है, तो यही चीज आपको दर्शाती है. दिस शोज दैट न्यूली फॉर्म डीएनए is one old strand which has N15 type and one new strand which has N14 type. This confirms semi-conservative replication. यहाँ पे देख लो बेटा, ये टेस्ट अब कर लो, ये टेस्ट ट्यूब 1 है. दिस इज टेस्ट ट्यूब 1, ये टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा. यहाँ पे देख लो बेटा, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब 1 को हमने डायरेक्टली लिया था N15 से, तो सारे ही 100% हेवी, 100% हेवी N15. अब सेकेंड जो लिया था उसको N14 में ट्रांसफर करने के बाद लिए थे, जिसमें सारे ही हाइब्रिड आ गए. ठीक है, फिर 20 मिनट्स के बाद हमने लिया 50% हाइब्रिड. तो यहाँ पे देखो 50% हाइब्रिड और 50% जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है उनमें होता है N14. क्यों? क्योंकि मीडियम में N14 है बेटा, मीडियम में N14 है, इसलिए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है उनमें भी N14 होगा. तो ऐसे आप देखते जाओ, तो परसेंट वाइज आप देखते जाओगे, जो पैरेंटल स्ट्रैंड है वो कम होते जा रहा है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो ज्यादा होते जा रहा है. बट स्टिल पैरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड इन हाफ मैनर. तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना. नाउ यू कैन लुक एट योर एनसीईआरटी डायग्राम. तो यहाँ पे लिखा है बेटा N15 विच इज हैवी, इट शोज द डीएनए ऑफ हैवी. ठीक है, तो डीएनए हेवी दिखाता है. तो आफ्टर 20 मिनट्स यू विल सी द हाइब्रिड, जिसमें N15 N14 दोनों ही है. ठीक है, तो अगेन आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, आप 20 मिनट्स ले लो या फिर 40 मिनट्स ले लो, आप देखोगे दोनों ही आपको स्ट्रैंड्स मिलेंगे, लाइट और हाइब्रिड. अगर आप हाइब्रिड पूरा मिलने के बाद, मतलब जनरेशन 1 के बाद 20 मिनट्स के बाद देखोगे, तो 50% न्यूली स्ट्रैंड आपको मिलेंगे, 50% हाइब्रिड मिलेंगे. अगेन 20 मिनट्स, मतलब टोटल 40 मिनट्स छोड़ के देखोगे तो 75% न्यूली फॉर्म्ड एंड 25% हाइब्रिड. तो ऐसे ही आप देखते जाओगे. तो दिस कंफर्म्स दैट द रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. क्या ये समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर? बेटा ये बहुत इजी है. आई डोंट नो व्हाई माय स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर. मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये कुछ डिफिकल्ट है. क्या आप क्लियर हो इस चीज से? ओके, देखो बेटा, वो सीजियम क्लोराइड का इतना टेंशन मत लो, आपके सिलेबस में है नहीं और कभी पूछा भी नहीं है. ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया कि क्यों यूज होता है सीजियम क्लोराइड. ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक और एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है. ठीक है, जिसने किया है टेलर ने. जिसको किया है टेलर ने. तो मेसाचेन स्टॉल ने वर्क किया था बेटा, उन्होंने किया था इकोलाई पे, बैक्टीरिया पे किया. तो इन टेलर भाई साहब ने किया प्लांट के ऊपर. कौन सा प्लांट लिया? वैसिया फेबा. ठीक है, तो इन्होंने ये प्लांट लिया था. तो इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर यहाँ पे डाला है, आप देख लो. सो व्हाट दे डिड वाज, टेलर टुक रेडियोएक्टिव थाइमिडिन. ओके, थाइमिडिन क्या है? वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस है. आपको पता है ना, ATCG. तो उसमें जो T है वो थाइमिडिन है, वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर है. तो इन भाई साहब ने रेडियोएक्टिव थाइमिडिन को इंजेक्ट किया रूट्स. ठीक है, रूट्स के सेल के फेबा प्लांट में, फेबा प्लांट के रूट सेल्स में इन्होंने रेडियोएक्टिव थाइमिडिन को इंजेक्ट किया. तो अब क्या होगा? रूट सेल्स में रेडियोएक्टिव थाइमिडिन है. ठीक है, जब एनवायरनमेंट में थाइमिडिन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देख लो, सेल्स होंगे, रूट के सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा. अब ये जो डीएनए है वो टाइम टू टाइम रेप्लिकेट करता है ना. तो जब टाइम टू टाइम रेप्लिकेट करेगा, जब रूट सेल्स में आपने रेडियोएक्टिव थाइमिडिन डाला है,
ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन डाला है तो वो क्या करेगा, वो इनकॉर्पोरेट कर जाएगा डीएनए में। जब डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेगा तो सारे क्रोमोसोम में ही दिखाएगा। बेटा ये बेसिक है, मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको बताया है ना। तो यही चीज यहाँ पे है, अगर न्यूक्लियोटाइड बेसिस में है तो डीएनए में होगा, डीएनए में है तो क्रोमोसोम में होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए इज नथिंग बट अ सिंपल जीन विच इज प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स इन सेल, ठीक है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के अंदर, दोज आर यूज्ड अप फॉर रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के लिए जो न्यूक्लियोटाइड यूज होंगे ना, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे रेडियो एक्टिव थाइमिडिन, क्योंकि रूट सेल्स में थाइमिडिन है, हमने इंजेक्ट किया था। तो अभी रेप्लिकेशन होगा तो नए नए थाइमिडिन लेके, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके स्ट्रैंड बनाते जाएंगे। अब आप रेप्लिकेशन में वो देखोगे तो उसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज होगा। तो वही चीज आप यहाँ पे क्रोमोसोम में देखते हो। ठीक है, वही चीज आप क्रोमोसोम में देखते हो। तो आपने अभी क्या किया, नॉर्मल थाइमिडिन को रिमूव किया। ओके, नॉर्मल थाइमिडिन बाय रिमूविंग आरए थाइमिडिन। अच्छा, यहाँ पे मैंने हर जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ओके, थाइमिडिन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल थाइमिडिन होना चाहिए था, हमने बहुत सारा रेडियो एक्टिव थाइमिडिन इंजेक्ट कर दिया रूट सेल्स में। अब हर जगह पे रेडियो एक्टिव थाइमिडिन ही है। ठीक है, अब ये कब तक होगा, जब तक होगा, कब तक रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज्ड अप नहीं हो जाता। पूरा रेडियो एक्टिव जब यूज हो जाएगा तो फिर नॉर्मल क्या कहते हैं वो रेप्लिकेशन होगा। तो जो लास्ट मैंने येलो में लिखा है ना, उसका मतलब क्या है, जब सारा ही रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज अप हो जाएगा रेप्लिकेशन में, तो जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो नॉर्मल कहलाएंगे, वो फिर रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखो बेटा, ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन है। जब हमने इंजेक्ट किया था सेल्स को, तो आप क्रोमोसोम्स को एक्सट्रैक्ट करके देखोगे तो सारों में क्या होगा, थाइमिडिन होगा, दैट इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड थाइमिडिन। क्यों? क्योंकि एकदम आपने ज्यादा दे दिया था ना रेडियो एक्टिव थाइमिडिन, तो इसके वजह से सारे क्रोमोसोम में जो थाइमिडिन है वो रेडियो एक्टिव बन गया। ठीक है, तो आप इनको अलाउ करें कि हाँ भाई ये जो सेल है ये नेक्स्ट जनरेशन पे जाए डिवाइड करके। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप देखो नेचर में रेडियो एक्टिव लेबल्ड कम है, थाइमिडिन कम है, तो वो क्या करेगा, अपने नया सिंथेसिस करेगा जो नॉर्मल होगा। तो ऐसे ही करते करते आप देखोगे, ठीक है, तो एक ओल्ड रहेगा, एक न्यू बनेगा। तो हमने मिसेस एंड स्टॉल में क्या देखा था, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, एक पैरेंटल एक न्यूली फॉर्म्ड। तो इन टेलर एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो इन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे आप देख रहे हो विद द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम में ही ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जब फर्स्ट क्रोमोसोम होगा, जब फर्स्ट जनरेशन का जब हमने इंजेक्ट किया, तो आप देखोगे सारे क्रोमोसोम में थाइमिडिन भरा होगा, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। नेक्स्ट जनरेशन में वो जैसे खत्म होते जाएगा और ये न्यूली सिंथेसाइज करेगा अपना थाइमिडिन, नेचुरल थाइमिडिन, तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड में आप देखते जाओगे। ठीक है, तो ये जो टेलर्स एक्सपेरिमेंट है ये भी प्रूव करता है कि हाँ डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई थी, इट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सिर्फ डीएनए ही नहीं, डीएनए इन क्रोमोसोम, ये सेम ही चीज है। इस बंदे ने पता नहीं क्या सोच के किया, बट किया, हमको सिलेबस में दिया है, 4 सेंटेंस याद करने हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्रोमोसोम के बेसिस पे कहा है, मेसेल्स एंड स्टॉल ने डीएनए के स्ट्रैंड के बेसिस पे कहा है। ठीक है, दे परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फेबा बीन्स यूजिंग रेडियोएक्टिव थाइमिडिन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, अभी क्लियर है ना। सो नाउ वी आर कमिंग टू रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन देखने के लिए हमको जानने हैं कुछ एंजाइम्स का एक्शन। ओके okay, so now we are entering into replication. For learning replication we need to look some enzymes. तो कौन से enzymes यहाँ पे हमको पता होने चाहिए? First enzyme that involve in DNA replication is helicase. ठीक है, तो ये हेलिकेज एंजाइम करता क्या है बेटा? हेलिकेज एंजाइम करता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। जैसे डीएनए ऐसा होता है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड लाइक दिस, अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे इसको सेपरेट करना। ठीक है, ऐसे अनवाइंड करके सेपरेट करना, जैसे लैडर लाइक शेप बने। ओके, तो दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। ओके, ऐसे घुमा फिरा डीएनए को सेपरेट करना है, अनवाइंडिंग। वाइंड मतलब घुमाना, अनवाइंडिंग सेपरेट करना।
डीएनए गायरेस एक एंजाइम है जो रिलीव करता है स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अनवाइंडिंग। बेटा आप ना एक धागा ले लो, ठीक है, एक धागा ले लो, आप उसको, वो एक धागा एक डायरेक्शन में वाइंड अप होके रहता है, आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अनवाइंड करते जाओगे तो कहीं एक स्टेज पे जाके स्ट्रेस क्रिएट होगा उस धागे में। सिमिलरली डीएनए में भी क्या होगा, जब एक राइट हैंडेड हेलिक्स में वाइंड है हमारा डीएनए, अब इसको हेलिकेस एंजाइम जब अनवाइंड करता जाएगा तो तब एक स्ट्रेस क्रिएट होगा हमारे डीएनए में, तो वो जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेस। ठीक है, डीएनए गायरेस बताता है कि हाँ भाई तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए डीएनए का। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट इज एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन मींस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ना अनवाइंड होने के बाद ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन गया डीएनए का, अब ये ऐसे सेपरेट होगा। ठीक है, अब ये सेपरेट होगा, समझ आ रहा है, अब ये सेपरेट होगा। तो अब इस सेपरेट होने के टाइम पे जो यहाँ पे स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है, तो ये क्या करेगा बेटा, इनके बीच में थी हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है आपको, एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सीजी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में होती है अफिनिटी, प्यार होता है ना बेटा, ए को टी से, सी को जी से। जब हम इनको जबरदस्ती अलग कर रहे हैं तो इनके पास अफिनिटी होती है कि वापस जाके जुड़ जाएं, इनके पास वो अफिनिटी होती है। लेकिन इनको जुड़ने ना देने के लिए, ना जुड़ने के लिए एक प्रोटीन आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड पे जाके अटैच करेगा और उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्टेबलाइज करके रखेगा कि हाँ भाई तुझे दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है, तू सेल्फ भी बहुत कुछ कर सकता है, एक स्ट्रैंड होके भी तू कुछ कर सकता है। ठीक है, तो वो एक समाधान देता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच करके। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्राइमेस। ये जो प्राइमेस एंजाइम है ये बेटा सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को। आप मुझे पूछोगे मैम हमको आरएनए प्राइमर की जरूरत ही क्या है, हमको बनाना है डीएनए। देखो बेटा, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो वहां पे एंजाइम यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, लेकिन इस डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर के बीच में एक प्यार है। ठीक है, एक प्यार है, एक चीज। दूसरी चीज, आरएनए प्राइमर ही 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच होता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता। मैं आपको समझाऊंगी आगे जाके एक्सप्लेनेशन में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हमको आरएनए प्राइमर चाहिए। ओके, आरएनए प्राइमर चाहिए हमको। तो प्राइमर का मतलब क्या है बेटा, देखो प्राइमर जो होता है ना वो एक शॉर्ट फ्रैगमेंट है। ठीक है, एक शॉर्ट फ्रैगमेंट है ऑफ आरएनए। ओके, आप कंफ्यूज मत होना बेटा, प्राइमर और प्रोब में। आप बायोटेक्नोलॉजी में जाके प्रोब भी पढ़ोगे। प्रोब इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए विच इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। रेडियो एक्टिव लेबल शॉर्ट सेगमेंट है तो उसको बुलाते हैं प्रोब। प्राइमर जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल नहीं होता, वो एक सिंपल सा आइदर आरएनए या फिर डीएनए का एक प्राइमर होता है। ठीक है, जो एंजाइम बनाता है प्राइमेस, यूजुअली आरएनए का होता है। ठीक है, तो प्राइमेस, आरएनए प्राइमेस विल सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है बेटा, जो प्राइमर जुड़ा होता है, ओके, जुड़ा होता है, वो बीच में जाके अटैच होता है 3 प्राइम एंड में। जब आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच होता है तभी डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करके पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, सराउंडिंग में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको लगाते जाओ और डीएनए स्ट्रैंड बनाते जाओ, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 की जरूरत है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की जरूरत है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ भाई मैं कहाँ जाके जुड़ूं, कहाँ जाके पॉलीमराइजेशन करूं, उसके लिए चाहिए बेटा आरएनए प्राइमर। ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ढूंढेगा कि हाँ भाई आरएनए प्राइमर कहाँ हो तुम। जहां पे आरएनए प्राइमर दिखता है वहां पे ये अपना काम शुरू करता है पॉलीमराइजेशन का। समझ रहे हो? हाँ, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एलोंगेट करता है, पॉलीमराइजेशन करता है नया स्ट्रैंड। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज में भी 3 टाइप के है बेटा, एक डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। 2 का इतना ज्यादा काम नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इस उतना टेंशन मत लो, 1 और 3 का ही पढ़ लो। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है,
DNA polymerase 1. Okay, Himanshi, but this is very important what we are learning now. Okay, you can leave, no problem. Okay, you can leave, but this is important what I'm teaching. Eventually you will get the notes. PPT में notes तो मिलेंगे. Okay, okay, you can leave. ठीक है. The excision of primers. Okay, तो excision मतलब remove करना. Excision मतलब removing of primers and filling the gaps with nucleotide. इतना याद रखो, मैं प्रोसेस आने पे समझा दूंगी. ठीक है. डीएनए लाइगेस क्या करता है बेटा? ज्वाइन करता है. लाइगेस का मतलब है ज्वाइन करना. लाइगेशन, लाइगेस मींस ज्वाइनिंग. ठीक है. निक का मतलब होता है एक कट. निक का सिंपल मीनिंग होता है बेटा कट. कहाँ पे कट है, कहाँ पे ब्रेक्स हैं, वहां पे ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेस. तो इतने एंजाइम्स के बारे में आप पढ़ लो तो बहुत है. ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. तो इस प्रोसेस में बेटा फर्स्ट चीज आपको क्या देखना है? ओके, फर्स्ट चीज इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन यू हैव टू सर्च फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये आपका डीएनए है. ठीक है. तो हर डीएनए में एक साइट होता है बेटा, उसको हम बुलाते हैं ओराई साइट. ओके, ओराई साइट होता है. सो इन दिस ओराई साइट द रेप्लिकेशन विल स्टार्ट. इसीलिए इसको बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर कोई भी डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं रहा तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा. ठीक है. तो इसलिए रेप्लिकेशन के लिए ओराई साइट होना जरूरी है, क्योंकि ओराई साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. तो प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन ओराई साइट इज सीन. ठीक है. बट इन यूकैरियोट्स मोर देन वन ओराई साइट आर फाउंड एंड मेंशन. ठीक है. आपको यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा ओराई साइट मिल सकते हैं. नाउ यहाँ पे देख लो बेटा, आई एम गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे मल्टी रेप्लिकॉनिक एंड रेप्लिकॉन. ठीक है. रेप्लिकॉन क्या है ये आप देख लो, ये कई बार पूछा गया है. रेप्लिकॉन इज नथिंग बट एरिया ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन अकर्स विथ वन ओराई साइट. ठीक है. कंसिडर करो बेटा, एक डीएनए है, उस डीएनए में एक ही ओराई साइट है, तो उस एरिया ऑफ डीएनए को हम बुलाते हैं रेप्लिकॉन. ओके, बिकॉज इट हैज ओराई साइट इट विल अंडरगो रेप्लिकेशन, तो उस एरिया ऑफ डीएनए को हम बुलाते हैं रेप्लिकॉन. जब कोई भी डीएनए में एक से ज्यादा ओराई साइट है तो उस डीएनए को हम बुलाते हैं मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए. ओके, और द मल्टी रेप्लिकॉनिक एरिया ऑफ डीएनए. ठीक है. ये चीज आपको याद रखना है. तो रेप्लिकेशन के लिए फर्स्ट चीज आपको क्या देखनी है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है. ठीक है. तो नेक्स्ट तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हम लोग रेप्लिकेशन के लिए. तो सेकेंड चीज आपको करनी क्या है बेटा? यू नीड टू एक्टिवेट. ओके, एक्टिवेट हुम, किसको एक्टिवेट करना है? डीएनएमपीस. डीएनएमपीस को एक्टिवेट करना है. मैम ये क्या है, ये आखिर है क्या? बेटा ये कुछ नहीं, सिंपल है. डीऑक्सी का मतलब इसलिए है क्योंकि हम लोग डीएनए के स्ट्रैंड्स बना रहे हैं, तो डीऑक्सी होना है. ठीक है. ये डीऑक्सी राइबो हो गया, इसका क्लियर है. अब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट आपने सुना है ना बेटा? आपने सुना है एटीपी, ये सुना है एएमपी, है ना? तो इसमें एक डिफरेंस है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो इसी को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ठीक है. अब इस न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में एक ही जगह पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे टी, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है. तो ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है. तो इनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि एक्टिवेटेड फॉस्फेट्स के एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन करने के लिए एक्टिवेटेड चाहिए, और एक्टिवेटेड कौन है? ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं एक्टिवेटेड. ठीक है. तो कैसे एक्टिवेट करेंगे? एएमपी को या फिर टीएमपी को, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स को हम 2 फॉस्फेट ग्रुप्स देंगे. ओके. तो इनको जब हम देंगे तो क्या होगा? ये इसके साथ कुछ एनर्जी भी देनी पड़ती है, जैसे एटीपी. ठीक है. तो इसको हमको देना पड़ता है एटीपी. तो एटीपी एनर्जी है. तो प्रोसेस क्या हो रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन. क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो प्रोसेस का नाम है फॉस्फोरिलेशन. एंड द एंजाइम इज फॉस्फोरिलेज. Okay, phosphorylase is the enzyme through which this process of phosphorylation is happening. तो अब आपको क्या मिल गया? एक्टिव
डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे एक्टिवेटेड फॉस्फेट्स आपको मिल गए। अब ये इतना होना चाहिए रेडी, इतना होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद सारे चीज आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये एंजाइम्स है, बट ये डायग्रामेटिक फॉर्म में है तो मैंने दिया है बस, ठीक है। हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है, ठीक है, सेपरेट करता है पेरेंटल डबल हेलिक्स को। यहाँ पे एसएसबी पी प्रोटीन स्टेबलाइज करके रखता है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन को। प्राइमेस एंजाइम जो है शॉर्ट प्राइमर को टेम्पलेट पे लगाता है, और यही आरएनए प्राइमेस, ठीक है। तो आरएनए प्राइमेस जो है, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज भी करता है, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज भी करता है, और आरएनए प्राइमर को, ठीक है, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए में अटैच भी कराता है, ठीक है, प्राइमेस एंजाइम। So that is what you have to remember. Apart from that, DNA polymerase 3 bind करता है न्यूक्लियोटाइड को to form new strands, ठीक है। तो जो न्यू स्ट्रैंड मैंने बताया ना कि पॉलीमराइजेशन होगा, जो एनटीपीज हैं, ठीक है, एनटीपीज, ओके, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जिसमें ए आ सकता है, टी आ सकता है, सी या जी, तो उनको ऐड करके हम क्या करेंगे, नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है, जहां पे भी आरएनए प्राइमर होता है उसको निकालना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। तो वो आपने निकाल दिया, और आपने क्या ऐड किया, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, ठीक है। डीएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स करेक्ट वाले चाहिए वो ऐड करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, ये अब मैं बताऊंगी प्रोसेस में। प्रूफ रीडिंग इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, ओके। सो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, ज्वाइन करेगा जहां कहीं पे भी ब्रेक्स हो या कट्स हो या फिर निक्स हो, ओके, ऑल आर सेम मीनिंग। तो जहां कहीं पे भी ब्रेक्स होगा तो वहां पे ज्वाइन करेगा लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है बेटा मैंने रेप्लिकेशन का। तो क्या होता है देखो, ये पैरेंटल डीएनए है, ठीक है। सो फर्स्ट हियर यू आर व्हाट यू आर सीइंग इज अ पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ओके। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करेगा एंड अनवाइंड करेगा, ओके। अनवाइंड करने के बाद क्या होता है, प्राइमेस एंजाइम जो आरएनए प्राइमर बनाया था उसको अटैच करता है 3 प्राइम एंड में। एंड दिस इज कंपल्सरी, यू हैव टू रिमेंबर, आरएनए प्राइमर इज अटैच्ड ओनली इन द 3 प्राइम रीजन, 5 प्राइम में बिल्कुल नहीं होगा, ये 3 प्राइम में ही अटैच करता है। आरएनए प्राइमर 3 प्राइम में अटैच करता है, इसीलिए जो पॉलीमराइजेशन है दैट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये बताऊंगी मैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम से T3 प्राइम एंड पे होता है, ये एक वन ऑफ द रीजंस है। क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड पे अटैच करेगा और आरएनए प्राइमर से कंटिन्यू करते हुए जाएगा हमारा पॉलीमराइजेशन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 3 प्राइम एंड पे आरएनए पॉलीमरेज को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो आके बाइंड करेगा और सिंथेसाइज करता जाएगा हमारा डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेटेड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाएगा, एलोंगेट करता जाएगा, अल्टीमेटली यू विल गेट 2 डॉटर स्ट्रैंड्स, ओके। सो दिस वाज द ओवरव्यू दैट आई वांटेड टू गिव यू, okay। Now coming to the actual process, ये भी actual process हो रहा है, ठीक है। The complete process of DNA replication involves following steps, ठीक है। तो following steps है इस process में, क्या है मैंने बोला ना, first आपको recognize करना है, you know, ओराइसाइट, ठीक है, because ओराइसाइट is the origin of replication। अगर ओराइसाइट नहीं है तो start ही नहीं होगा बेटा replication, ठीक है। Now जब आपने ओराइसाइट को recognize कर लिया तो अब क्या होगा, unwinding of DNA, ओके। डीएनए जो है उसको सेपरेट करना होता है, ओके, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होता है, विच इज डन बाय एंजाइम हेलिकेज, ठीक है। जब आप हेलिकेज एंजाइम से सेपरेट होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा प्लास्मिड होता है ना। तो उस प्लास्मिड में व्हाट हैपेंस इन द प्लास्मिड, ठीक है। तो प्लास्मिड में आप देखोगे यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होता है, रेप्लिकेशन बबल। सो दिस हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्रिएट होता है बेटा वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क जो बनता है वो यूकैरियोट्स में बनता है, ठीक है, दैट हैपेंस इन यूकैरियोट्स, क्लियर। चलो,
तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, इन प्रोकैरियोट्स यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे हेलिकेस एंजाइम से सेपरेट हुआ, यहाँ पे बबल बना, ओके। तो यहाँ पे ब्लू कलर इंडिकेट्स न्यू डीएनए, ग्रे कलर इंडिकेट्स ओल्ड डीएनए। तो ये बबल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया दोनों एंड्स में। तो ग्रे कलर वुड बिकम अ टेम्पलेट और मदर स्ट्रैंड, ठीक है। जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर में है। तो लाइक दिस इट विल हैपन। ये होता है प्रोकैरियोट्स में इन द प्लास्मिड। यूकैरियोट्स में क्या होगा बेटा, ऐसे सेपरेट होगा, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद आपको, आप देखोगे कि स्ट्रैंड एक्सपोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड बने हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे जॉइंट था, तो अब आपको दो स्ट्रैंड मिले हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम बुलाते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इन दोनों स्ट्रैंड्स के बेसिस पे, रेफरेंस पे लेके यहाँ पे नए स्ट्रैंड्स बनने वाले हैं। नवे जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे उनको डिफरेंट नाम देंगे, लेकिन जो पुराना मदर से जो आया था स्ट्रैंड्स डीएनए का, उनको हम बुलाते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये जो है बेटा, इसको हम कल पढ़ेंगे, ओके। वी आर गोइंग टू डू दिस टुमारो, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आंसर करते हुए जाएंगे। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन in which two strands of DNA separate and synthesize new strand. Which type of DNA replication is this? Very good, class 12, बहुत easy था। It is semi conservative, ठीक है। इट इज सेमी कंजर्वेटिव बेटा, बहुत है कराने को और जानने को। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है और लोग भी कम है, ओके। सो विल डू इट टुमारो। देखो कितना कुछ मैंने लाया है, ट्रांसक्रिप्शन, वो ये बहुत कुछ, ओके बेटा। सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, ऑन मंडे। टिल देन कीप रीडिंग एनसीईआरटी। और कुछ भी डाउट्स है तो बेटा कल की क्लास में पूछना। कल का क्लास सैटरडे संडे का होता है डाउट सॉल्विंग क्लास, जो मुझे 11th क्लास को दिया है, 12th क्लास विनय को दिया है। आप विनय से पूछो, ठीक है। सॉरी मैं सैटरडे संडे नहीं मिल पाती आपको, लेकिन आप विनय सर से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, सी यू, बाय क्लास 12।